Bismillahirrahmanirrahim. Today our article is Article 155. 155. 155 says refreshing memory. Refreshing memory means अपनी याददाश्त को ताज़ा करना। ये वाक़यात मामलात काफ़ी टाइम पहले के होते हैं, कोई इंसिडेंट है, कोई और है, तो वो उसको रिफ्रेश करने का चांस दिया जाता है। Number one, a witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerned which he is questioned, or soon afterwards, that the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. अभी क्या हुआ, विटनेस में वाहिल अंडर एग्जाम, जो विटनेस अंडर एग्जामिनेशन है उसका बयान हो रहा है, तो ये फ्रेश हिज मेमोरी, वो अपनी मेमोरी फ्रेश कर सकता है बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, कोई भी ऐसी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन कंसर्निंग व्हिच ही इज क्वेश्चन, यानी उस ट्रांजैक्शन के बारे में जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है। Or soon after that, the court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. ठीक, या वो कोई कोर्ट कंसिडर करे कि वो उतना शॉर्ट टाइम था कि द ओपिनियन ऑफ कोर्ट वो उस बंदे को मतलब याद होगा, यानी कि if when he read it he knew it to be correct, it likely that the transaction was at that time fresh in his memory. Second है, the witness may also refer to any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid if when he read it he knew it to be correct. अच्छा, अब सेकंड क्या कंडीशन है कि विटनेस में आल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि उस विटनेस को ऐसी राइटिंग को भी रेफर किया जा सकता है टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन, जो किसी एन अदर पर्सन की राइटिंग हो। ऊपर क्या थी कि उसकी खुद की राइटिंग है, इधर एन अदर पर्सन की। थर्ड क्या है, whenever a witness may fresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document. So the witness refresh his memory by reference to any document का अगर कोई उसमें reference है तो he may, with the permission of the court, refer to a copy of such document. उस डॉक्यूमेंट की कापी को रेफर कर सकता है बंदा। और उसमें कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे सेटिस्फाइड दैट देयर इज सफिशिएंट रीजन ऑफ द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। कंडीशन यही है, शर्त यही है कि कोर्ट भी सेटिस्फाई हो कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल जो है उसकी कुछ सफिशिएंट कॉज है। फोर्थ कंडीशन ये है कि एन expert may refresh his memory by reference to professional treatise. अब ये क्या हुआ कि कोई एक्सपर्ट जो है तो वो जो है अपना may refresh his memory by reference to professional treatise, कोई प्रोफेशनल ट्रीटीज है उसको यानी कि रेफर कर सकता है। जैसे कोई बुक वगैरह है, कोई ट्रीटी है, कोई मतलब तो एक्सपर्ट है बंदा, प्रोफेशनल है, मैं रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस
to professional treaties. अच्छा, अब ये जो witness जब during his examination refers his memory by referring क्या at the time of the transaction concerning which he is questioned, यानी किस टाइम at the time of the transaction concerning which he is questioned, जिसके बारे जो in question है. सेकंड है soon afterwards that the court consider it likely that the transaction was fresh in his memory. मतलब afterwards court consider करती है कि it likely that the transaction was fresh in his memory. There any such writing made by any other person and read by the witness within the time aforesaid, यानी कि within the time. There are professional treaties if the witness is an expert. तो प्रोफेशनल ट्रीटीज को रेफर करने के किसको परमिशन है कि अगर वो एक्सपर्ट है, वो बंदा जो विटनेस जो है, जैसे कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है. It is not necessary that the writing referred to should be one which is admissible in evidence. A document not produced in the court within the proper time and in consequence rejected may be referred to refresh memory if it comes within the purview of this section, even if a document या पंचनामा containing a statement made by a witness as to the crime committed is not admissible in evidence. Witness can make use of it for the purpose of refreshing his memory. Where the document is made by police but is immediately read over to the court should not take cognizance of the terms of document which is inadmissible in evidence and has been referred to by a witness merely in order to refresh his memory as to date. अच्छा, सिर्फ सिंपल बात ये है इसमें कि जब कोई गवाह कोर्ट में एग्जामिन हो रहा है, अब जैसे कोई डॉक्टर आए, अब वो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है तो उसको साल भर पहले की, 6 महीने पहले की, या वो मेडिकल सर्टिफिकेट साल भर पहले का 6 महीने, तो वो उसे जब डॉक्टर विटनेस बॉक्स में आएगा तो उसे वो डॉक्यूमेंट जो है रेफर करने की, देखने की, अपनी मेमोरी फ्रेश करने के लिए वो डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हैं. तो वो मतलब सिर्फ ये है कि उसकी एविडेंशियली वैल्यू वो एडमिसिबल हो इन एविडेंस में. तो अक्सर ये पुलिस ऑफिशियल्स जो होते हैं ये एविडेंस देने आते हैं. कोई पुलिस का मुशीर है, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई किसी एफआईआर में कंप्लेनेंट है, तो मतलब क्या है कि फिर वो ऐसी सूरत में वो पुलिस वाले, क्योंकि सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो अगर अपने उसमें रोजनामा एंट्रीज है या केस डायरी है या पुलिस पेपर है तो उसको वो रेफर कर सकता है ताकि डेट एंड टाइम और वो जो वाकयात हैं वो उसको मतलब फ्रेश हो जाए. अच्छा, अब क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द विटनेस शुड हैव स्पेसिफिक रिकंसिलेशन ऑफ द फैक्ट्स देमसेल्फ, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि विटनेस शुड हैव specific recollection of the facts themselves. So the adverse party has the right of seeing the writing so used and cross-examine the witness thereupon. अच्छा, जो अपोजिट पार्टी है उसे राइट है कि वो उस डॉक्यूमेंट को जो वो विटनेस रेफर कर रहा है उसे वो देख सकता है और क्रॉस एग्जामिन में क्वेश्चन भी कर सकते हैं. The grounds upon which the opposite party is permitted to inspect a writing used to refresh the memory of a witness are threefold. अच्छा, अब grounds upon which the opposite party is permitted, वो क्या grounds है कि नंबर 1, to secure the full benefit of the witness recollection as to the whole of the fact.
या वो क्या है, टू सिक्योर द फुल बेनिफिट ऑफ द विटनेस रिकलेक्शन एज टू द होल ऑफ द फैक्ट्स। सेकंड क्या है, टू चेक द यूज ऑफ इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ये भी चेक किया जाए कोई इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट तो उधर है, सिक्योर किया जाए, इधर चेक किया जाए। और थर्ड है, टू कंपेयर हिज ओरल टेस्टिमनी विद हिज रिटन डॉक्यूमेंट, और वो जो है कंपेयर कर सकता है कि ये जो इसका रिटन, टू कंपेयर हिज ओरल टेस्टिमनी जो ज़बानी बयान दिया विद हिज रिटन स्टेटमेंट। तो ये है आर्टिकल 155, अपनी मेमोरी जो है बंदे को फ्रेश करने के लिए वो कर सकता है। अब इस तरह काफ़ी बहरहाल है, लेकिन जैसे अभी ये इसमें लिखा है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन, relevancy of public record made in performance of duty. So investigation officer to look into the case diaries to answer correctly the question put to him in cross examination. Case diaries can also be used by the court to trace out the various stages of investigation. The statements recorded under Section 161 CRPC are not privileged even if recorded in the body of the case diary. Such statements are public documents within the meaning of Article 49 PSO and are per se relevant under the said article. तो अब वही जो मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो इस केस डायरी वगैरह, और जो वो उसमें 161 भी रिकॉर्ड करता है, 164 भी, बाकी शीरनामे का भी वो ऑथर होता है, तो वो रेफर कर सकता है। और वैसे भी ये डॉक्यूमेंट जो है ना पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।